हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थियरी ऑफ मशीन का जो ऑब्जेक्टिव्स है ये 6वां पार्ट है। टोटल 5 पार्ट में हमने 125 क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। सो 126, अ पॉइंट बी ऑन अ रिजिड लिंक ए बी मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड. The total acceleration of b with respect to a will be equal to. So answer is here C. Okay, the vector sum of radial component and tangential component. Okay, now next is the acceleration of particle at any instant has a 2 components. First one is radial component and second one is tangential component, and these components will be, answer is perpendicular to each other, means the radial component and tangential component. If you have solved the problem of acceleration, then there are 2 components, radial component and tangential component, and these both component perpendicular to each other. Point B on the rigid link AB moves with respect to A with angular velocity omega radian per second. Then the radial component of acceleration of B with respect to A. So यहाँ पे जो radial component of acceleration of B with respect to A जो है वो है v square BA upon AB. Okay. Now answer is D. Now next is the point B on a rigid link AB move with respect to A at the angular velocity omega radian per second. The angular acceleration of link AB. तो यहाँ पे angular acceleration यानी कि alpha जो है alpha is equal to, so what is the answer? Alpha is equal to ATBA upon AB. ठीक है, tangential acceleration of BA and AB. Okay. Now next is 130. The center of gravity of a coupler link in a 4 bar mechanism will experience. मतलब कि 4 बार जो मैकेनिज्म है उसमें जो कपलर लिंक है उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लिनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सपीरियंस करती है. ठीक है. नाउ व्हेन द पॉइंट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन इट्स एक्सेलरेशन विल हैव. तो अगर पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है इट हैज़ अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ओनली. सो आंसर इज बी. When the point at the end of link move with the constant angular velocity, तो यहाँ पे क्या था, straight line, तो यहाँ पे angular velocity है, then its acceleration will have the radial component only. So 132 का जो आंसर है that is A. Now 133, in a shaper mechanism the Coriolis component of acceleration does not exist. तो अगर आपने शेपर मैकेनिज्म देखी हो तो उसमें कोरियलिस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स इट इज फॉल्स. सो 133 का जो आंसर है वो गलत है क्योंकि शेपर मैकेनिज्म में कोरियलिस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 134. द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर with respect to coincident point on the link is called the Coriolis component of acceleration. So answer is agree. Okay. Now the tangential component of acceleration of the slider with respect to coincidental component of the link of Coriolis component of acceleration. So answer is A. Next is the Coriolis component. फ्रेंड्स, आई होप आपको पता होगा कोरियोलिस कंपोनेंट जो है आपने थियरी उसकी रिफर की होगी, राइट. सो कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एक्ट परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग सरफेस. ओके. उसमें क्या होता है, लिंक जो होती है और यहाँ पे जो स्लाइडर होता है, ठीक है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन एक्ट परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग सरफेस. ये स्लाइडिंग सरफेस है हमारी, उसके परपेंडिकुलर वो एक्ट करता है. ठीक है. Now the Coriolis component of acceleration is taken into account for quick return mechanism. तो यहाँ पे आंसर is for 136 आंसर is C for the quick return mechanism. Okay. Now the Coriolis component of acceleration depend on, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक. सपोज यहाँ पे ये पिवट पॉइंट है और ये लिंक है,
तो ये लिंक जो है वो यहाँ पे रोटेट भी हो रही है और यहाँ पे स्लाइडर जो है वो स्लाइड भी कर रहा है। तो यहाँ पे वो दोनों पे डिपेंड्स करती है कि ये जो स्लाइडर है, वेलोसिटी ऑफ दिस स्लाइडर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक। ओके, नाउ 38, सो इसका जो आंसर है वो आएगा सी। नाउ 38, अ बॉडी इन मोशन will be subjected to Coriolis acceleration when that body is, so answer is restrained to rotate while sliding over another body. So answer is D. Okay, now next is a slider move at the velocity v on a link revolving at omega radian per second. Okay, स्लाइडर जो है वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड से वो v वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। नाउ कोरियलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, सो उसका जो कोरियलिस कंपोनेंट है, ठीक है, वो होगा 2 ओमेगा इंटू वी। नाउ द कोरियलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लीड द स्लाइडिंग वेलोसिटी बाय, तो यहाँ पे जो कोरियलिस कंपोनेंट है, जैसे हमने बोला कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग सरफेस। सो परपेंडिकुलर जो है यानी कि 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। स्लाइडिंग वेलोसिटी जो है तो यहाँ पे आंसर होगा 90 डिग्री। द सेंस ऑफ कोरियलिस कंपोनेंट 2 ओमेगा वी, जो अभी हमने देखा यहाँ पे 2 ओमेगा वी इज सेम एज दैट द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर वी रोटेटेड एट, तो यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, फिर से परपेंडिकुलर आएगा 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लिंक कंटेनिंग द पाथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कोरियलिस कंपोनेंट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट वेन एवर अ पॉइंट मूव अलोंग द पाथ दैट हैज, सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, रोटेशनल मोशन, यानी कि कोरियलिस कंपोनेंट में स्लाइडिंग एंड रोटेटिंग मोशन जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट व्हेन एवर पॉइंट मूव अलोंग द पाथ दैट हैज़ अ रोटेशनल मोशन। इन अ पेंटोग्राफ, अगर आपने पेंटोग्राफ नहीं देखा हो तो एक बार सिर्फ सर्च कर लीजिए, इमेज देख लीजिए। जो पेंटोग्राफ है, ऑल पेयर आर, so all the pair of pantographs are turning pair. Okay, now which of the following mechanism is made up of turning pair? इसमें से कौन सी मैकेनिज्म में टर्निंग पेयर यूज होती है? सो पॉसेलियर मैकेनिज्म एंड हार्ट्स मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे स्कॉट रसल मैकेनिज्म बाकी रह जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्लाइडिंग पेयर यूज होती है, ठीक है। सो 145 का जो आंसर है दैट इज ए, sliding pair for the Scott-Russell mechanism. Okay, now 146, an exact straight line motion mechanism is a, तो यहाँ पे स्कॉट रसल्स, हार्ट्स मैकेनिज्म एंड पॉसेलियर मैकेनिज्म, ये तीनों जो है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो आंसर इज डी। नाउ 147, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज एन अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म? तो यहाँ पे जो वॉट मैकेनिज्म है, ग्रासहोपर मैकेनिज्म है एंड रॉबर्ट मैकेनिज्म है, ये तीनों मैकेनिज्म है, उसे हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। आपने फ्रेंड्स काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में ये सब्जेक्ट में ये पूरा जो मैकेनिज्म है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द करेक्ट स्टीयरिंग इज, तो करेक्ट स्टीयरिंग के लिए एक फंडामेंटल हमने कुछ इस तरह से फाइंड भी किया था कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐसे व्हील ड्रॉ किए थे, ओके, और ये व्हील का जो यहाँ पे सेंटर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया था उसमें था कॉट फाई माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू सी बाय वी। ओके, सो आंसर सी बाय बी, सो आंसर इज सी। सो 148 जो है फॉर द करेक्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे फंडामेंटल इक्वेशन इज कॉट फाई माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू सी बाय बी। ओके, नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर द करेक्ट स्टीयरिंग ऑफ दविस स्टीयरिंग गियर इज। तो दविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म जो है उसमें कंडीशन क्या है, तो उसमें कंडीशन है tan अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन 2b। ठीक है, आपने दविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म एंड जो दूसरी मैकेनिज्म है, ठीक है,
से एक्करमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। सो यहाँ पे जो दवे स्टीयरिंग गियर है उसका करेक्ट इक्वेशन क्या है, tan alpha is equal to c upon 2b. Now last one is the ratio of velocity of shaft connected by hook joint is given by. So what is the answer of this? A n upon, sorry for the disturbance. Okay, so answer is A, n upon n1 is equal to 1 minus cos square theta sin square alpha upon cos alpha for the ratio of velocities of the shaft connected by hook joint. तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।